جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اپسوس کا نیا سروے سامنے آیا ہے۔ یہ بین الاقوامی ادارہ ہے جو سرویز کرتا ہے، اور اس سروے کے مطابق 94% پاکستانی اس وقت اس حالت میں ہیں کہ عام جو گروسری کے آئٹمز ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے ہیں، ان کو بھی خریدتے ہوئے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ اس وقت ہماری معیشت کی حالت ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو موجودہ حکمران ایک چیز کا گلا شکوہ کرتے تھے کہ جناب مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، معیشت میں یہ ہے، معیشت میں وہ ہے، اور دوسرا جو وہ گلا شکوہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی اس وقت جو ہے ہائی بریڈ نظام ہے، عمران خان صاحب کے دور میں ہائی بریڈ نظام ہے۔ ہائی بریڈ پہ تو ہم بات نہیں کرتے کہ انہوں نے کتنی امپروومنٹ لائی ہے یا نہیں لائی، ذرا معیشت کے اوپر تھوڑی سی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سروے کی۔ اس سروے کے مطابق جناب اس وقت جو ہے 87% پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی سمت درست نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے۔ 13% یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہے یا اس کا درست سمت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ اب یہ 13% آئی ڈونٹ نو کون ہے جو حکومت میں ہے یا کدھر رہتے ہیں، پر 13% یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا 70% لوگ جو ہیں ان کے تحفظات ہیں معیشت کے حوالے سے۔ 70%، جی ہاں جی 70%۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 87% جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہے۔ 70% کے اوور آل کنسرنز ہیں، ملک کی معیشت کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ 12% یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پر امید ہیں اور جو ہے بہتری آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو ہے 22% پر امید تھے، اب اس میں بھی کمی آ گئی، اب صرف 12% لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا اس سروے کے مطابق جناب 67% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ذاتی حالات ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں ہے، کسی قسم کی بہتری کی ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اور وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 13% پر امید ہے کہ ان کے ذاتی حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ شاید وہی ہوں گے جو حکومت کے اندر ہوں گے یا جناب جن کا کوئی نہ کوئی جیک لگا ہوا ہے، پر اینی وے 94% میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ شاپنگ سے بھی ابھی چلے گئے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ عام جو ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہیں ان کو خریدتے ہوئے بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، گھی ہو گیا، دیگر چیزیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو میڈیا پہ آپ پہلے بہت زیادہ سنتے تھے، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہم کہیں باہر جاتے تھے تو ہمیں مہنگائی کا پتہ چلتا تھا، ہم ٹیکسی میں بیٹھتے تھے، ہمارا کوئی صحافی دوست اس کو بتا دیتا تھا، کوئی بابا آ کے کوئی بات کر جاتا تھا، کوئی سبزی والا کچھ بتا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ 94% لوگ پاکستانی جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاپنگ صحیح نہیں کر سکتے، وہ جناب ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، معیشت کی یہ حالت ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بیسک ہاؤس ہولڈ آئٹمز نہیں خرید سکتے۔ تو اب یہ لوگ کیوں نہیں ملتے ان صحافیوں کو، اب یہ اس طرح کی باتیں کیوں نہیں سامنے آتی، مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پلیز کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا اس میں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ 94% پاکستانی ایسے ہیں اس سروے کے مطابق جو پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ یعنی گاڑی خریدنا، گھر خریدنا، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے کانفیڈنس لیول اس وقت آپ کی معیشت میں۔ جس ملک کی آبادی کا 94% جو ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، گاڑی نہیں خریدنی چاہیے، گھر نہیں خریدنا چاہیے، کیا اس ملک کے اندر باہر سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب معیشت کے اوپر اپنی آبادی کا جو کانفیڈنس ہے اس کا لیول یہ ہے جو میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں، تو کیا کوئی اور آ کے آپ کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کرے گا، آپ کے ملک میں آ کے کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، یہاں پہ کوئی پیسہ لے کے آئے گا؟ یہ بڑا کوشچن ہے جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اس وقت حکمران ہیں یہ آئے اسی چیز کے اوپر تھے کہ جناب ہم نے معیشت بہتر کرنی ہے، 6 مہینے میں بہتر کر دینی ہے، سال میں بہتر کر دینی ہے۔ اب جو بھی حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اچھا اور اس میں جناب ایک اور چیز جو ہے 90% پاکستانی ایسے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن کی 1 روپے کی وہ جناب بچت بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی ہوتا ہے جتنی تنخواہ آتی ہے اتنی چلی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ہی ایسے ہوں گے کہ جن کی تنخواہ آتی ہے اور اس سے زیادہ ان کا خرچہ ہو جاتا ہے، جو اوور آل اس وقت سچویشن ہے۔ تو یہ تو جناب اس وقت ملک کی معیشت کی حالت ہے، یہ سارا آپ یہ اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا ہے، تمام وہ میں نے تصاویر وغیرہ شیئر کر دی ہیں، آپ جا کے یہ خبر پوری پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اپسوس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے آپ یہ سارا سروے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسری جانب جو بڑی خبر یہ ہے کہ جناب گزشتہ روز شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے۔ کیا وہ ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ملاقات ہوئی ہے، یا پھر جو قانون سازی آ رہی ہے، جس قسم کے پیکج کی بات ہو رہی ہے کہ جی
जुडिशल पैकेज आएगा, ये करना है, वो करना है। वहां पे कहीं पे भी आपको ये मामलात जो है वो तरजीह में नजर आते हैं। अब मौलाना साहब से पहले जरदारी साहब मिलने गए, अब मौलाना साहब से कौन मिलने गया, शहबाज शरीफ साहब मिलने गए, दोनों दफा मोहसिन नकवी साहब साथ थे। मसला क्या है कि जनाब हमारी तरफ आ जाओ, वो जो कानून साजी वगैरह करनी है ताकि इमरान खान को मजीद आइसोलेट किया जा सके, वो कानून साजी कर ली जाए और उससे हुकूमत जो अहदाफ हासिल करना चाहती है वो अहदाफ हासिल कर लें। तो ये इनके अहदाफ हैं। जब इनके अहदाफ ये हो जाएंगे कि मुल्क की मैशत बेहतर करनी है और इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो एक वर्ड डिसग्रेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या इस सर्वे के ऊपर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? अब ये जो थोड़े बहुत लोग इसको कवर करेंगे, मीडिया पे इसके ऊपर बात होगी तो फिर शायद कोई इसके ऊपर बात कर ले, लेकिन जो तरजीहात हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, मौलाना साहब से मुलाकात होगी जी, शहबाज शरीफ साहब की मौलाना को कहा गया है। वैसे मौलाना साहब ने जिस तरह के बयानात वगैरह दिए थे और मौलाना साहब ने जिस तरह की बातें की थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मौलाना साहब की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। अब हालत देखें आप, मौलाना की कितनी सीटें हैं और कितना वोट बैंक है मौलाना का इस मुल्क में। मौलाना तो अपना हल्का नहीं जीत सके, मौलाना को तो जाके पशीन से जीतना पड़ा और पतन की जो रिपोर्ट है पशीन के हल्के के हवाले से वो भी आपके सामने है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कभी सदर उनसे मिलने जा रहे हैं, कभी वजीर आजम उनसे मिलने जा रहे हैं कि ये मतलब मौलाना का कितना वोट बैंक होगा। 5% भी नहीं होगा, 6% भी नहीं होगा, कितना होगा? बहुत ज्यादा, चले हम कह देते हैं 10% होगा। मतलब जो पाकिस्तान की 100% आवाम है उनका कितना ख्याल रखा जा रहा है और मौलाना का जो वोट बैंक है वो कितना है मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन उसके बावजूद उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? इसलिए कि ये अशराफिया का सिस्टम है। इस अशराफिया ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी मौलाना का जो मर्जी मौक़िफ़ हो, मौलाना इस सिस्टम के जो है ना वो हैं, इस सिस्टम के बगैर मौलाना सरवाइव नहीं कर सकते। ये जो निज़ाम है, ये जो अशराफिया का, तो वो इसी के अंदर रह के खेलेंगे। तो अगर किसी ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि जी वो मौलाना जो है वो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने तो सेनेट की 2 सीटें भी मांग ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऑल्दो कि उनके पास तो इतना भी वोट नहीं है कि वो एक भी सीट वहां से सेनेट की ले सकें। तो उसके बावजूद जनाब उन्होंने 2 सीटें भी मांग ली हैं। तो जो जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मौलाना इमरान खान साहब के साथ मिलकर हुकूमत गिरा देंगे और वो बार बार इस तरह की बातें, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सदर साहब भी मिलने गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मिलने गए हैं, ये लोग भी पहले कोई होमवर्क करके ही मिलने गए होंगे। अब देखते हैं जनाब कि मौलाना आने वाले दिनों में क्या फैसला करते हैं। लेकिन इस मुल्क की आप सियासत की सितम जरीफी देखें, इस मुल्क की अवाम की बदकिस्मती देखें कि एक बंदा जिसके पास 10 सीटें भी नहीं है कौमी असम्बली के अंदर, एक बंदा जिसके पास 10 सीटें भी नहीं है उस सूबाई असेंबली के अंदर जहां पे उसका अपना हल्का है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब उससे बार बार जाके मिल रहे हैं क्योंकि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। क्योंकि यहां पे अवाम के मुफाद की अगर कानून साजी हो और अगर अवाम के मुफाद की बात हो तो फिर जिनको अवाम ने वोट दिया हुआ है वो मोतबर हों, वो इंपॉर्टेंट हों, लोग उनसे बात करें, लोग उनसे जाके मिलें। लेकिन यहाँ पे मसाइल क्या है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत नून लीग का अहम मुशावरती इजलास जनाब शुरू हो चुका है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या उस इजलास में भी ये सर्वे डिस्कस होगा? क्या उस इजलास में 94% वो पाकिस्तानी डिस्कस होंगे जो बेसिक ग्रोसरी के आइटम्स इस वक्त नहीं खरीद सकते? हर किसी की यहाँ पे अपनी अपनी तरजीहात हैं। हमें नहीं पता कि क्या डिस्कस होगा। कहा जा रहा है कि बहुत सारी मुशावरत होगी, सियासी मुशावरत होगी, ये होगा वो होगा। अब देखते हैं कि ये जो महंगाई का आलम है और ये जो चीजें, इनके ऊपर वहां पे क्या चीज डिस्कस होती है, या फिर दोबारा यही डिस्कस होता है कि हमारे साथ किसने जुल्म किया था, किसने क्या किया था, हमें क्यों हुकूमत से निकाला था, वही सिर्फ बातें होंगी, या जो अवाम के इस वक्त मसाइल हैं उनके ऊपर भी कोई बात होगी। अच्छा जी, मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, उनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा है कि हमने आपके ऊपर नजर रखी हुई है, कोई गड़बड़ हुई तो फिर आपको अंदर डाल देंगे पूरी जिंदगी के लिए। और इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा है कि गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से वो 2020 का जो इंतखाब था वो हार गए थे। और फेसबुक ने दूसरी जानिब यकीन दिलाया कि इस दफा कोई ऐसी बात नहीं होगी, इसलिए कि वो उसमें बहस ये थी कि जो लेफ्ट विंग है उनकी पोस्ट ज्यादा सामने नजर आती है डेमोक्रेट्स की, और जो कदामत पसंद है या राइट विंग है उसको दबाया जाता है, वहां पे इस किस्म की बात नहीं होती। तो ये वो गिला शिकवा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। वैसे अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है,
आपको एक नई इस्टेब्लिशमेंट बनती हुई नजर आती है। अक्सर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करते हैं, अगर इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कोई बन रही है तो ये बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं। ये जिस तरह फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम, तो ये सारा मेटा का आप हिस्सा है, आपका एक्स हो गया, एलन मस्क आप देख लें, उसके अलावा दीगर जो लोग ऐप्स बनाते हैं। फ्रांस के अंदर वो जिसने सिग्नल ऐप बनाई है उसका भी बड़ा इशू है, बहुत सारी हुकूमतों को उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। डरव गालबन उसका नाम है तो वो रशियन है पर अब रहता मेरे ख्याल में वो फ्रांस में, उसने वहां की नेशनलिटी वगैरह ली है, तो उसके ऊपर भी वो सारे मामला चल रहे हैं। तो ये वो एक ऐसी नई इस्टेब्लिशमेंट बन गई है कि जो दुनिया का रुख मोड़ सकते हैं, जो आपके ओपिनियन बदल सकते हैं। और इस चीज को समझते हुए हुकूमतों ने भी अपने आप को थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश की है और उसके साथ चलने की कोशिश की है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला अभी तक ये है कि जनाब एक्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। इस पाबंदी से अब ये फायदा कोई नहीं होगा। मसला तभी हल होगा कि जब इन नए तकाजों को समझा जाए कि कैसे इन चीजों के साथ डील किया जाता है, कैसे इन चीजों को देखा जाता है। अब जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, हुकूमतें हैं, इदारे, इवन सरकारी इदारे, इवन के खुफिया इदारे, उनके भी मुआहदे होते हैं इस तरह की कंपनियों के साथ जो उनको इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं सोशल मीडिया के साथ, बाकायदा प्रोफेशनली वो फराहम करती हैं। अगर आप बैंकों की बात कर लें, अगर आप बीबीसी जैसे इदारों की बात कर लें, दीगर इदारों की बात कर लें, तो वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। एक कंपनी है डेटा माइनर, उसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी हैं, बैंक्स भी हैं, रिस्क असेसमेंट वाली कंपनियां भी हैं, न्यूज के इदारे भी हैं, सरकारी इदारे भी हैं। वो जाते हैं, जाके सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जनाब उस मुल्क में सोशल मीडिया पे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या ट्वीट हो रही है, क्या चीज हो रही है। डेटा माइनर मेनली जो है वो ट्वीट्स को पहले देखते थे और पता नहीं कितने 100 मिलियन का जो है चीज ट्वीट्स का और कितना वो डेटा रोज उसमें से गुजरते हैं। उन्होंने रीजन्स बनाए हुए हैं कि साउथ एशिया पे इसने नजर रखी हुई है, उस पे उसने रखी हुई है। वो पूरी एक वो है टेक कंपनी है, एक बड़ी जो है जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और फिर जिन लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट करनी होती है मुख्तलिफ जगहों पे, वो उनसे डेटा लेते हैं कि जनाब उधर बताएं पल्स क्या है, उधर क्या हो रहा है। तो ये जो सर्वे मैंने आपको बताया, ये तो एक पल्स है ना, ये तो सर्वे तो 6 महीने बाद आता है। ये डेली की बुनियाद पे इस तरह की जो कंपनियां हैं वो डेटा देख रही होती हैं कि जी ट्वीट्स क्या हो रही हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, इंग्लैंड से, किस तरह का माहौल है, स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या आने वाले दिनों में वहां पे पॉलिटिकल सिनारियो क्या बन सकता है, हुकूमत गिर सकती है, किस में क्या तनाव है। ये सारी चीजें वो इस चीज को उन्होंने एनालिस्ट रखे होते हैं, वो बैठे हुए देख रहे होते हैं। तो ऐसे दौर के अंदर हम कहें कि जी हमने एक्स पे पाबंदी लगा देनी है और जनाब उसके बाद क्या वो जो देख रहे होंगे वो फिर ये भी देख रहे होते हैं कि जनाब वीपीएन लगा के हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। तो हमें दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं उनको समझने की जरूरत है, उसको समझ के ही हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये जो है ना कि जी दबा दो, बंद कर दो और इसके बाद जनाब चीजें ठीक हो जाएंगी, वैसा नहीं हो सकता आजकल के दौर में। नहीं तो अमेरिका बंद कर लेता, कोई और बंद कर लेता, सारे जो है ये सारी चीजों को बंद करके हुकूमतें कह देती कि जनाब ठीक है जी ये सब कुछ हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि मुश्किलात का सामना उन हुकूमतों को भी होता है, दुनिया भर में जिधर भी हुकूमतें होती हैं सोशल मीडिया से उनको भी मसाइल होते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे फिर आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमने देखा, रिसेंट मिसाल इंग्लैंड की हमारे सामने है। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।